Okay, so in this video we are going to do free clean company questions. Okay, question number is 247. Just wait, okay. Okay. The chemical free clean company, uh, what would be, first question is, what would be in the right sequence the main step involved in driving a target cost for C company? Okay, the this basically is related to target cost, and I don't think for this question we need to read the scenario. We all know what the sequence or steps involved in the target costing is. Okay, the first step is to determine a product specification for which sales volume is estimated. After the product specification has been determined, the next step is we have to find out the competitive price of the similar product in the market. Okay, after that, third step is then we will deduct desired profit margin from those selling price and we will get the target cost. And how we will get that? By subtracting target selling price minus target profit, we will get the target cost. And after that we will identify the estimated cost, and there might be difference between the estimated cost and target cost, so called a cost gap, and we try to adopt a various ways or step we will take to reduce this cost gap. Okay, so let's look at the options. The first is define the service. Yes, first we have to determine the as this is a cleaning service, for that reason it's telling defining a service. In case of the product, we or anything the goods, we have to define the product, right? So first step is to define the service. ठीक है, क्योंकि ये सर्विस कंपनी से रिलेटेड है. आप क्वेश्चन पढ़ोगे, ए केमिकल फ्री कंपनी free clean company CCO provide a range of environment friendly cleaning services. ये क्या provide करिए? Services to the business customer, often provide a specific service to meet a client need. Okay, it means specific service we also, as per the client requirement, the company used to provide. Its customer range from large office and the factory to specialist care what at a hospital. Okay, where specialist cleaning equipment must be used and regulation adhered to. Company offers both cleaning contract and contract for one of job. Okay, company both have a contract as well as one of jobs. For example, its latest client was chain of restaurant which employed them to provide a extensive cleaning of all their business premises after an outbreak of food poisoning. The cleaning market is very competitive, although very competitive. See, huh? Although there are only small number of companies providing a chemical free services, C company has always used cost plus pricing determining the prices which it charges to its customer. But recently the cost of cleaning product company use has increased. This has meant that C company has had to increase its prices, resulting in the loss of several regular customers to competitive service provider. The finance director at C company heard about the target cost and is considering whether it is could be useful at C company. See, आपका जो टारगेट कॉस्टिंग होता है ना, इट कैन बी अप्लाइड टू द बोथ प्रोडक्ट और सर्विस इंडस्ट्री एज वेल एज दोज कंपनी हु आर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट एज वेल. ऐसा नहीं कि सर्विस भी यूज नहीं कर सकते, बट या इट्स वेरी ट्रू कि लाइक वी कांट फाइंड द कंपेटिटिव प्राइस इन केस ऑफ अ सर्विस, दो वी हैव टू कंसिडर ए रीजनेबल प्राइस, बट स्टिल वी कैन यूज द टारगेट कॉस्टिंग. So as this question belongs to service concept, that's why the first steps involved in the target costing is to define the services. Okay, after that what I told, next step is to we have to identify the competitive price, or we can say target price, target selling price. Okay, and on from that target price we have to deduct our desired profit margin. Okay, and then we will calculate our target cost. And how we will get that? By subtracting the by difference between the target selling price and target desired प्रॉफिट, वी विल गेट द टारगेट कॉस्ट. ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस ही होता है टारगेट कॉस्ट, टारगेट सेलिंग प्राइस एंड टारगेट डिजायर प्रॉफिट मार्जिन.
ठीक है. So now from the option 4, the first option is define the services. As I told, set a target price, yes. Derive if operating profit and the calculate a target cost. जैसे मैंने बोला वैसे ही है. So option A is correct. B में क्या कहता है, set a target price, then drive a total profit margin, then calculate target cost per hour, then define service. बिल्कुल नहीं. ऐसा थोड़ी है कि जो भी मार्केट में सर्विस प्रोवाइड करे उसी को उसका प्राइस हम लोग सबका निकाले. जो हम लोग को चाहिए, जो हम लोग यूज़ करें, जो हम लोग सर्विस प्रोवाइड करें, या फिर जो प्रोडक्ट हम लोग प्रोड्यूस करें, उस मतलब प्रोड्यूस करने वाले हैं, उसका प्राइस लेंगे ना. सो दिस इज डेफिनेटली इनकरेक्ट. सेकेंड थर्ड वाले में भी सेम है, सर्विस डिफाइन किया ठीक, बट पहले प्रॉफिट नहीं, पहले टारगेट प्राइस देन प्रॉफिट हम लोग ड्राइव करेंगे, ये भी गलत. फोर्थ वाले में डिफाइन द सर्विस, ड्राइव द टारगेट प्राइस, कैलकुलेट द टारगेट कॉस्ट एंड देन सेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट. बिल्कुल नहीं, पहले प्रॉफिट हम लोग करने के बाद ही टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट होती है, टारगेट कॉस्ट पहले नहीं होगा. सो इसलिए इनकरेक्ट है. B number. 2 number, which two of the following statement correctly explain the difficulty faced if target costing is used in a service industry. अब हम लोग को एक्सप्लेन करना है कि सर्विस इंडस्ट्री में इफ वी आर यूजिंग ए टारगेट कॉस्टिंग, व्हाट डिफिकल्टी आर गोइंग टू बी फेस्ड. ओके, द फर्स्ट इज सर्विस कैन बी डिफाइंड टू इजिली एंड लैक द नेसेसरी कम्प्लेक्सिटी. ये ऑपोजिट सेंटेंस. सर्विस को डिफाइन करना इट्स वेरी हार्ड बिकॉज उसका नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होगा, साइमल्टेनियसली, इंटेंजिबल, हेट्रोजीनियस, है ना. तो और ये इसमें कम्प्लेक्सिटी भी होती है. सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ट्रू. ओके. सेकेंड, द सर्विस इज यूज एट द सेम टाइम इट इज प्रोड्यूस. ये किसको डिफाइन कर रहा है, साइमल्टेनियसली को. सो दिस इज व्हाट द फीचर ऑफ द सर्विस एंड विच मे क्रिएट डिफिकल्टी, है ना. तो बी भी आपका होगा. सर्विस इज स्टैंडर्डाइज टू इजिली. इट्स वेरी हार्ड टू स्टैंडर्डाइज सर्विसेज, क्योंकि हम लोग डिफरेंट पर्सन को डिफरेंट सर्विस है, एक नेचर का नहीं होता लाइक द प्रोडक्ट. सो दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू. अब तो बच गया एक, ऑब्वियसली वो ट्रू होगा. वो क्या कह रहा है, अनयूज लेबर कैपेसिटी कैन नॉट बी स्टोर फॉर यूज द नेक्स्ट डे. इसको किसको डिफाइन कर रहा है, पेरिशेबिलिटी, है ना, जो भी है. तो उसको डिफाइन कर रहा है. ऑब्वियसली लोग सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते नेक्स्ट डे यूज के लिए, लाइक इन द केस ऑफ ए प्रोडक्ट एंड विच मे क्रिएट डिफिकल्टीज, है ना. सो एट द टाइम ही कंज्यूम होता है, और मतलब एट द टाइम ही क्रिएट होगा, कंज्यूम होगा, स्टोर नहीं करने को मिलेगा. सो दैट्स व्हाट द बी एंड डी इज डिफाइनिंग. ओके. थर्ड, which of the following statement is or are true? CC company may not be able to get hold of any comparative data available for one of jobs, therefore setting the target cost will be difficult. अब ये बात भी सही है. अब वन ऑफ जॉब मतलब लाइक जो जिसका लाइक कंपटीशन ही नहीं है. कंपटीशन होने पे क्या होता है, हम लोग को इन्फॉर्मेशन इजिली अवेलेबल होता है, लाइक जैसे कि कंपिटिटिव प्राइस की बात करें, है ना. तो इन दैट केस इट्स वेरी इजिली, मतलब लाइक वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन वेरी इजिली. बट इन केस ऑफ वन ऑफ लाइक ट्रांजेक्शन जो भी यहाँ पे जॉब्स है, इन दैट केस इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड आउट द डेटा. सो ये ऑब्वियसली ट्रू है. सेकेंड क्या कह रहा है, सम ऑफ द वर्क्स अवेलेबल is very specialist and it may be difficult to establish the market price for the service, like making it difficult to drive a target cost. अब स्पेशली मतलब कि आपका वैरी होगा, सेम तो होगा नहीं, है ना. और सर्विस में क्या होता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द कम्पिटिटिव प्राइस, जैसे कि हम लोग प्रोडक्ट में सर्विस प्राइस फाइंड आउट कर लेते हैं ना. तो वैसे ही आपका लाइक स्पेशलिस्ट हो या फिर वन ऑफ जॉब हो, इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड आउट. मैंने जैसे बोला ना कि प्राइस फाइंड आउट करना इट्स वेरी हार्ड. अगर कम्पिटिटिव है तो उस केस में क्या होता है कि इजिली इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारे कंपिटिटर होते हैं मार्केट में, उससे हम लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं ना. बट इन केस ऑफ वन ऑफ जॉब्स या फिर लाइक आपका ये स्पेशलिस्ट, इससे चेंज होते रहता है ना, सेम नहीं रहता है ना. इन दैट केस ये आपको डिफिकल्टी क्रिएट कर सकता है. सो हियर बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू. ठीक है, एक सेकेंड. ओके. फोर्थ क्या कह रहा है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. Again, target costing is useful in the competitive market where company is dominant in their market, like CC company.
ये तो बात सही है कि टारगेट कंपनी इज यूजफुल इन द कम्पिटिटिव मार्केट, क्योंकि वहाँ पे इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल होता है हमारे पास। बट डोमिनेंट क्या हुआ? डोमिनेंट का मतलब मोनोपोली। अब मोनोपोली में क्या होता है कि अपने मन के अकॉर्डिंग चलते हैं, बहुत सारे कंपटीटर भी मतलब एंट्री नहीं कर पाते हैं। इन दैट केस टारगेट कंपनी हो सकता है आपका नॉट यूजफुल हो, है कि नहीं? तो अपना उनको अपना मन लगेगा, जितना प्राइस सेट करेंगे मोनोपोली वाले, है ना, जो मन में आए वो करते हैं। अब पढ़ा होगा एफएम जो दे दिया होगा, उसमें बहुत सारा फीचर्स एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है मोनोपोली का। सो दिस इज द फॉल्स। सेकेंड क्या कहता है, टारगेट कॉस्टिंग इज यूजफुल इन सीसी कंपनी कंपेरेटिव मार्केट इन द प्राइस इंक्रीज डज लीड टू द लॉस ऑफ द कस्टमर। अब ये ट्रू है, कैसे देखो कंपिटिटिव मार्केट मतलब आपके बहुत सारे कंपिटिटर है ना, और इन्फॉर्मेशन भी इजीली अवेलेबल है, तो आप लाइक कंपिटिटिव प्राइस जब हम लोग टारगेट सेलिंग प्राइस करते हैं वी कैन इजीली फाइंड आउट, है ना, उसमें से डिजायर प्रॉफिट मार्जिन हम लोग डिडक्ट करके वी कैन कैलकुलेट टारगेट कॉस्ट, और जो हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट होगा उसको हम लोग चाहेंगे रिड्यूस करना टू मिनिमाइज द कॉस्ट गैप। अगर हम लोग ने प्राइस इंक्रीज किया, इससे क्या होगा, हमारा सेलिंग प्राइस इंक्रीज करेंगे तो सेल्स वॉल्यूम फॉल होगा। क्यों? क्योंकि डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर इजीली स्विच कर सकते हैं। बहुत सारे कंपटीटर्स हैं मार्केट में जो उनको अच्छे खासे प्राइस पे वो प्रोडक्ट दे सकते हैं उनको। इससे क्या होगा, हमारा सेल्स लो होगा, सेल्स का तो मतलब कि प्रॉफिट भी कम आएगा हम लोग को, और नॉन फाइनेंशियल देखा जाए तो हमारा गुडविल पे इम्पैक्ट होगा, लॉस ऑफ कस्टमर भी होगा, है कि नहीं? सो बी इज करेक्ट। ओके, थर्ड, C company can ignore the market price for the cleaning services and simply pass on cost increase as it is done. C company can ignore the market price for the cleaning services and simply pass on the cost increases as it has on. अब ये हम लोग ना एब्जॉर्प्शन कस्ट में करते थे। उसमें क्या करते थे, हम लोग कॉस्ट लेके तब हम लोग सेलिंग प्राइस सेटअप करते थे। बट हम लोग टारगेट कॉस्ट में क्या करते हैं, हम लोग सेलिंग प्राइस लेके तब ना कॉस्ट सेटअप करते हैं। यहाँ पे वही बोल रहा है, इग्नोर द मार्केट प्राइस मतलब किस में करते थे हम लोग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। वहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट जो भी हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, सिंपली पास ऑन द कॉस्ट, तो ये कॉस्ट को कहाँ पास करते थे, प्रोडक्ट में। उसके बाद हम लोग सुइटेबल लाइक मार्कअप मार्जिन चार्ज करके तब हम लोग सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते थे। सो दिस इज बेसिकली डिफाइनिंग द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को। ठीक है। डी, target costing would help CC company to focus on the market price of similar services provided by competitor where this information is available. Target company would help C company, target costing, sorry, company बोल रही हूँ। Target costing would help C company to focus on the market price of similar services provided by competitors where this information is available. अब टारगेट कॉस्टिंग का तो वही तो नेचर है ना, लाइक कंपटीटर का सेलिंग प्राइस लेगा एंड लाइक कंपटीटिव प्राइस उस प्रोडक्ट का, देन आफ्टर डिजायर प्रॉफिट मार्जिन डिडक्ट करके उससे वो टारगेट कॉस्ट स्टैब्लिश करेगा, एंड अपने जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होगा प्रोडक्ट को बनाने में लगने वाला खर्च, उसको चाहेगा वो जितना हो सके कम करना, है कि नहीं? सो दैट्स वाई ये कहा है कि फोकस ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ सिमिलर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंप्यूटर वेयर दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. सो बी एंड डी इज करेक्ट. नेक्स्ट 5 number. Which of the following statements are true? If after calculating a target cost, company find the cost gap exists. If after calculating a target cost, C company find that cost gap exists. मतलब टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद उनको पता चला कि वहाँ पे कॉस्ट गैप है, मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट इज हायर देन द टारगेट कॉस्ट. It will then be forced to examine its internal process and cost more closely. अब ऑब्वियसली कंपनी फोकस करेगी, वो अपने इंटरनल प्रोसेस पे देखेगी कि लाइक कॉस्ट को कैसे कम करना है कि नहीं? और लाइक बहुत सारे कॉस्ट, जैसे कि अब मटेरियल की बात करें, जो नॉन वैल्यू एडिंग है उसको रिमूव कर सकती है, या फिर अगर प्रोसेस की बात करें तो वो लाइक चाहेगी इंटरनल प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए नए नए टेक्नोलॉजी लेके आना, सो दैट कि और इनका कॉस्ट जैसे भी कम हो जाए टू क्लोज द कॉस्ट गैप. तो ये ट्रू है. Second, if the company cannot achieve any reduction in the cost of cleaning product series, it should consider whether it can source a cheaper non-chemical product from the alternative supplier. अब ये भी सही है, कंपनी यूज़ करेगी चीपर प्रोडक्ट बट लोअर ग्रेड का नहीं. यहाँ पे लोअर ग्रेड की बात नहीं करी, सिंपली चीपर प्रोडक्ट की बात करेंगे, है ना. तो हम लोग सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. सो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है. सो इट मीन्स बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. Okay, so next question in video we will do the world company question.